Success Mantra. We shape future. Hello everyone. Welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior getting into the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. First of all, prior getting into details, let me tell you, in today's The Hindu, we have included those questions who were in the last days The Hindu. So we will add up those things in the question section, quiz section that we do on the daily basis. And for the today's aspect also, we have added some question that can be expected in the CLAT examination because the questions are on the pattern of the CLAT, right? Coming to the first step, what is first? We have what next on the data protection. Actually, the thing what is going on is about the major circumstances regarding the data protection because the government has withdrawn the bill. So we will just have a deal like what is this data protection, what is personal, what is non-personal data, and regarding those questions which can be asked in the CLAT examination like committee, joint parliamentary committee, and so on. And this is on page number 7, right? Apart from this, what we have is about the Delhi police use of facial recognition technology. इट इज ऑन पेज नंबर 8. ये द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दिल्ली पुलिस वाला बिकॉज इट दिस टॉपिक लिंक्स विद द डेटा प्रोटेक्शन. दिस टॉपिक लिंक्स विद द डेटा प्रोटेक्शन. And if you encounter the question in the examination regarding the data protection, you may encounter these two questions combined, right? Because the facial recognition technology is directly or indirectly somewhat related to the data protection, right? If data is protected, then the technology or any kind of biometric recognition can work properly, right? The third aspect is for us is on the lumpy skin disease. If you have gone to the text and context page of the Hindu, you can find a very small clip over the page of the Hindu, and it is regarding the lumpy skin disease. And these kind of disease, you should at least have a glimpse like what is in the news, what kind of disease it is. So such kind of questions you may encounter in your one liner examinations also. So just have a look back like what is important, and I have added only those part that can come into the examination, right? So first of all, what is first for us is regarding the data protection. In this whole article, the author talked about 2 to 3 different circumstances. First one is regarding the article 21. Third is about the case. This case is regarding the KS Puttaswamy judgment, the Aadhaar case, which popularly known as. And remember, I am remembering you, even the CLAT and IELTS have asked question on this. Even DULLB have asked question on this. So this is again in the limelight. So just have a read. Limelight. Why limelight? Limelight because the data protection bill has been withdrawn, right? Even after the amendments proposed by the parliamentary committee, right? And we will just have a deal like who's this parliamentary committee headed by, and this joint parliamentary committee that I am talking about right now. Apart from this, this whole section talks about the way forward. From this section, it is talking about the way forward. So again, it is important for you for the English section perspective because CLAT 2023 is near about on 18 December. So just have a look like what is data protection, how the things gonna work, and what is data protection basically. And we will link this with the European Union. And European Union, what is this European Union? How come this European Union introduced in this data protection? So just have a look. I'll tell you each and everything by doing the post-mortem of this very particular section of this article, right? So let's start. First of all, we have the growing importance of this complete page of PPT that you can access from the Telegram channel. A link will be in the description. So this complete PPT, this present slide talks about how the digital economy is important. Look, in the digital world, in today's time, this data protection thing is very important because we are in the fourth stage of industrial revolution. जो आपका पहला स्टेज था वो बेसिकली स्टीम इंजन से रिलेटेड था. सेकेंड स्टेज कंप्यूटर से रिलेटेड था. थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो थर्ड स्टेज वाज मोस्टली रिलेटेड टू द इंटरनेट्स, एंड फोर्थ इज अबाउट द डेटा. एंड नाउअडेज डेटा इज गोल्ड. If you have data of someone, you can just trace it out. You can just use the life of that very particular person. Even I am considering like you must have been reading the newspaper during your 8th or 9th class, right? You might have remembered the Edward Snowden case.
the Edward Snowden case, and even I have read about that Edward Snowden a lot. Like Edward Snowden ने जो ब्लूप्रिंट लीक किया था, तो वो भी काइंड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ही है. एंड चाइना जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, इन टुडेज टाइम, द वॉर इज नॉट गोइंग टू बी फॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी राइफल्स, हाउ मेनी आर्म्स यू हैव, और हाउ मेनी ammunitions you have. The war will be going to be fought on the basis of Internet of Things. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. वॉर, लड़ाई जो भी होगी किसी भी कंट्रीज के बीच में, वो डेटा वॉर होगी. इट विल बी अ डेटा वॉर. इट वोंट बी अ वॉर ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशंस. आगे के टाइम पे कोई भी वॉर होगी तो वो डेटा की वॉर होगी. इफ योर डेटा इज सेफ, माय गॉड माय फ्रेंड, यू आर कंप्लीटली सेफ. But if your data is not safe, you are in complete danger. So in this fourth industrial revolution, what is important? Important is data. And data केवल personal data नहीं होता है. Data can be of different types. It can be of countries data also. और इस पूरे paradigm shift में 3 basic ingredients होते हैं. Government and 2 aspects. One is the firm. I will tell you how the firms are being related to this whole data protection thing, and I'm giving you the background of this data protection जिससे आपको एक idea लग जाए. When you read the paragraph in CLAT, if such kind of topic come in the examination, then you won't get much surprises और आपको वो understanding की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि डेटा प्रोटेक्शन एग्जैक्टली है क्या, क्यों इसका यूज़ है, क्या मिसयूज़ है, क्या डिसएडवांटेज है. ये जब आपको सभी चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने नॉलेज को वहाँ पर, राइट. तो फर्म आता है और सिटीजन आता है. सिटीजन, ठीक है. अभी के टाइम पे यू माइट हैव एनकाउंटर्ड और यू आर एनकाउंटरिंग इन योर डेली लाइफ, लाइक if you have some data in your pocket, if you have some data in your phone, right, you are accessing those data to the companies, like for any kind of subscription you are taking, for any kind of thing you are doing, you are subscribing your data. And data, what is this data? I am talking about this data. What exactly this data is? Data को आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 का उसमें भी, और यूरोपियन यूनियन के एस्पेक्ट से भी, जो जिसको आइडियल माना जाता है, राइट, डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, उन्होंने डिफाइन किया था डेटा इज एनीथिंग, एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू द अदर पर्सन. अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? What kind of food you like, what is your health condition, your sex, what is your sex, and what everything, each and everything you do in your daily life that you give at the time of subscription, your bank account details, that can also be a data, right. तो जब डेटा जाता है तो वो फर्म्स के पास जाता है, राइट. और व्हाट वी डू, वी ट्रस्ट ऑन द फर्म्स कि वो लोग डेटा कहीं नहीं एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट. इफ यू पुट एनीथिंग ऑन गूगल, व्हाट यू पुट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, राइट. आप गवर्नमेंट को डेटा देते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. और अभी इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट. सो इट इज़ वेरी लाइक स्ट्रेंज टू लुक ऑन द थिंग्स लाइक दिस कि वी आर इन द 21st century एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ. But we are trying, and I think this thing will work soon, ASAP. It will work as soon as possible. So coming to the next aspect of this is about the types of data. This I am talking about. Look, basically there are 2 types of data. One is the personal and other is the non-personal data. Personal data basically, अगर हम layman language में समझें, personal data वो data होती है जो कि जिसका यूज किया जा सकता है आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, राइट. उन्हें हम पर्सनल डेटा कहते हैं. पर्सनल डेटा मतलब व्हाट इज योर सेक्स, मेल और फीमेल, विच काइंड ऑफ फूड यू लाइक, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर हाइट, विच फूड यू लाइक, राइट. ये सब टाइप के जो डेटा होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्सनल डेटा. जैसे अगर किसी के पास आपका एज पता होगा, हाइट पता होगा, आपका BMI पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स, आप किस टाइप के फूड्स को प्रेफर करते हैं वो पता होगा, तो वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को ट्रैक कर सकता है. लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल. व्हेन यू ऑल मस्ट बी, जो दोज हु आर वाचिंग हियर, यू मस्ट हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वंस इन अ व्हाइल, right. You might have ordered, or you must have ordered, I am saying that. And if let's take an example, like if there is a company like Zomato or Swiggy and you ordered a common kind of food on a regular interval of time, then Zomato tend to suggest you those things, not on the Zomato app only. It will show you on the Google feed, it will show you on the Instagram, it will show you on the Facebook also. Nonetheless, like WhatsApp पे क्यों नहीं होता है?
व्हाट्सएप जब आप यूज़ करते हो तो जब भी कॉल करता है या फिर कोई एक उसमें डिस्क्लेमर आता है तो उसमें लिखा जाता है कि दिस चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब इट इज सेफ, इट इज बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, योर डेटा इज सेफ देयर। बट जो आपके पर्सनल डेटा जो आप गूगल करते हो या किसी फॉर्म में डालते हो वो आपको सजेशन होने लगता है कहीं ना कहीं, आपने ये चीज़ देखा होगा, राइट। तो वो जो है वो टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है उसे हम कहते हैं पर्सनल डेटा। और जब ये डेटा किसी हाई प्लेटफॉर्म पे लीक होती है किसी होल कंट्री की, तो इट डैमेजेस द कंप्लीट कंट्री एस्पेक्ट, राइट। एंड व्हाट इज द नॉन पर्सनल डेटा? दोज डेटा विच आर नॉट पर्सनल इन नेचर, जिससे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलती है, उसे हम कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा। सो दीज बोथ काइंड ऑफ डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू track down any person, to track down any person or any country. So there is a need of legal framework कि भरोसे पे दुनिया कायम है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, बट भरोसा इतना भी ना हो कि वो ज़्यादा ही लॉस में ही ले जाए आपको, राइट। तो दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ टू काउंटर चेक एंड टू क्रॉस चेक सच थिंग्स, राइट। कमिंग टू द एस्पेक्ट, ये आपको मैंने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि व्हाट इज दिस डाटा प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट, दीज टाइप्स ऑफ डेटाज, एंड वो क्यों जरूरी है डेटा प्रोटेक्शन बिल और लॉ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, जो फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस जो हमारे एग्जाम के लिए नीडेड है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था 2019 में एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आई, राइट। 2019 में एक बिल आई, उस बिल को 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश किया गया। उसी दिन ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे उसको एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया, joint parliamentary committee. Basically it was 10 or 11 member body, just confirm me, and 10 or 11 member body thi. This body is not important for you. What is important, who was the head of this JPC committee, जिसको 11 दिसंबर 2009 को ये कमेटी बना के दिया गया था कि सर जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं इस 2019 के बिल में आप क्रॉस चेक करके दीजिए। तो वो थी बीजेपी एमपी पीपी चौधरी की कमेटी थी, पीपी चौधरी की कमेटी थी। उन्होंने आफ्टर 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स 2021 में उन्होंने रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में इसमें काफ़ी लोग जजेस भी थे, एग्जीक्यूटिव्स भी होते, सारे लोग होते हैं इस कमेटी में। तो पीपी चौधरी की जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दी, एंड दैट रिपोर्ट कंटेन्ड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स, सेवरल अमेंडमेंट्स थे उसमें, तो ठीक है। फिर उसको बाद में टेबल किया गया लोकसभा पे, एंड सब्सिक्वेंटली ऑन 4th और 3rd ऑफ अगस्त ऑफ 2022 गवर्नमेंट हैज विड्रॉन कि सर इतना चेंज करने से अच्छा है कि हम एक नया बिल ही लेके आ जाएंगे। और ये बिल जो था वो मॉडल था आपका यूरोपियन यूनियन GDPR के, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन, 2 ही मेजर कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसा डेटा प्रोटेक्शन है, एक तो आपका यूरोपियन यूनियन और एक है जापान। और इंडिया का मॉडल जो है वो इस पे बेस्ड है, यूरोपियन यूनियन पे। और यूरोपियन यूनियन में जो मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, राइट। और ये जो कमेटी बनी थी एमपी चौधरी की, इसने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन किया था। पहले इसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल, उन्होंने कहा कि पर्सनल वर्ड हटाइए, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, क्योंकि पर्सनल एंड नॉन पर्सनल बोथ डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज़ थी, और यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट इसको लिया गया जनरल डेटा, जनरल कोई भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन की बात करें जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दिस मॉडल इज बीइंग फॉलोड, तो यूरोपियन यूनियन का मॉडल 2016 में फोर्स में आया और 2018 में अप्लाई हुई। ये 2 आपको डेट्स याद होने चाहिए। इंडिया में कौन सी कमेटी बैठी थी, इस कमेटी का नाम याद होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, apart from this, what is in this article and what we need to analyze is about the India's previous development. Look, this data protection thing is not new in India. You must have your Aadhaar card, right, for you, right, because such kind of cards is required in the CLAT entrance, right, for your identity, right। तो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आधार कार्ड जब आया तो उसके रिगार्डिंग भी एक केस हुआ था जिसको हम कहते हैं आधार कार्ड केस, राइट। आधार कार्ड केस कहते हैं या UIDAI केस कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो आया था उसके रिगार्डिंग भी एक केस हुआ। उस केस का नाम था KS पुट्टास्वामी एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के रिगार्डिंग हर एक एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन डाला है, एंड यू शुड रीड इट। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच, 9 जज की बेंच थी। इन्होंने यूनानिमसली डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में डाला। एंड आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड हमारे पास आज एक क्वेश्चन है कि इस टाइप का अगर पैराग्राफ आता है तो किस किस वेरिएंट के क्वेश्चंस आपके लिए
ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ये याद रखना है। प्राइवेसी केस बोल लीजिए, आधार केस बोल लीजिए, यूआईडीआई केस बोल लीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि आधार कार्ड को मनी बिल की तरह से पास किया गया था, राइट। तो ये चीज आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए फॉर अ जनरल पर्सपेक्टिव एंड फॉर मोर डीप अंडरस्टैंडिंग। कि बच्चों को होता है कि सर और केसेस बताओ और केसेस बताओ। तो इस पूरे डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है उसने 2 केस को ओवररूल किया था, राइट। 2 के तभी ये इतनी बड़ी बेंच बैठी थी। इवन आई हैव टोल्ड यू, इफ यू आर अ कंटिन्यूअस फॉलोअर ऑफ माय सेशन, then I told you earlier, like if you want to overrule a particular judgment you must have a bigger bench। ये चीज मैंने आपको बताया था पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जजमेंट में। बताइएगा किस जजमेंट में ट्विन बेल कंडीशन को अपहेल्ड किया गया, कहा गया कि ये ट्विन बेल कंडीशन ठीक है। तो केस का नाम बताइएगा, अभी रिसेंट ही केस हुआ है एंड दिस केस ओवररूल द निकेश ताराचंद केस। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, बताइएगा केस का नाम क्या है। आर्टिकल 21 की बात की जाए तो इन दिस करेंट एस्पेक्ट आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। केएस पुट्टास्वामी ने एमपी शर्मा और खड़क सिंह के केस को ओवररूल किया था एंड केएस पुट्टास्वामी केम इन द लाइमलाइट। सो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया डेटा प्रोटेक्शन का। व्हाट इज दिस डेटा प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट। इंडिया का मॉडल किस पे बेस्ड है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड कौन था, पीपी चौधरी, राइट। इंडिया का मॉडल यूरोपियन यूनियन के बेस है। कौन सी 2 कंट्री जिनके पास है अभी, जापान और चाइना, जापान और ये यूयू के पास है। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास भी, जैसे चाइना है उनके पास अगर इंडिया का कोई डेटा चला गया, वैसे ही चाइना का अलग ही मतलब इशू चल रहा है अभी, आप सब जान रहे हो इंडियन ओशन में। लाइक श्रीलंका में चाइना का एक जहाज आया है, बताइएगा विच शिप केम इनटू द श्रीलंकन हम्बनटोटा पोर्ट, शिप का नाम बताइएगा। and I really appreciate those people who answer in the comment section, like it is very nice to look on कि आप सेशन को इतने अच्छे से देखते हैं, आप हिंदू को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बिकॉज इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट, इट पुट इम्पैक्ट इन दोज 1.5 आवर ड्यूरिंग द क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब केएस पुट्टास्वामी 2 आवर का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें भी आपको वो ट्रिगर करेगा, उस टाइम पे वो 2 आवर्स आपका कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इफ यू हैव अ गुड रीडिंग, लिसनिंग एंड आंसरिंग हैबिट, वेराइटी होता है आपके पास, राइट। तो अभी के एस्पेक्ट पे बात करें तो केएस पुट्टास्वामी है, खड़क सिंह है और एमपी शर्मा है। आर्टिकल 21 भी देख लिया हम लोगों ने। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, देखिए जो कमेटी होती है डाटा प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग, बच्चे डायरेक्टली स्किप कर देते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग एक कमेटी है, बीएन श्रीकृष्ण। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन मैंने क्या बताया आपको, डेटा प्रोटेक्शन 2 तरह से होता है, एक पर्सनल, एक होता है नॉन पर्सनल, राइट। एक पर्सनल डेटा, एक होता है नॉन पर्सनल। पर्सनल डाटा के ऊपर जो कमेटी बैठी थी वो थी जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की। नॉन पर्सनल डेटा पे जो कमेटी बैठी थी वो थी मिस्टर कृष्ण गोपाला कृष्णन की। तो ये दोनों याद होनी चाहिए आपको, पर्सनल पे बीएन श्रीकृष्णा, नॉन पर्सनल पे कृष्ण गोपाला कृष्णन, राइट। और जो आपका पूरा राइट टू प्राइवेसी है, डेटा है, तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है आपकी, वो है राइट टू फॉरगेटन, कि भुला देना, राइट। गाना नहीं याद रखना है, भुला देना, राइट। राइट टू फॉरगेटन का मतलब होता है कि आपकी डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी हो, इंटरनेट पे हो, किसी वेबसाइट पे हो, किसी ऐप पे हो, वहाँ से डिलीट कर दी जाए। यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है वो आर्टिकल 17 में इस चीज़ को मेंशन भी करता है। इवन इस चीज़ की बात इंडिया में भी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस था, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ही इज़ अ अमेरिकन सिटीजन जिन्होंने केस फाइल किया था। कहा था कि उनके रिगार्डिंग नारकोटिक्स का केस था इनके ऊपर, तो कहा था उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को कि सर मेरे रिगार्डिंग जो भी राइट टू फॉरगेटन होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी के साथ। तो ये चीज़ था। ये अभी देखिएगा इनकेस जब डेटा प्रोटेक्शन बिल आता है फाइनली, तो उसमें ये राइट टू फॉरगेटन क्लॉज इंक्लूड होगा, क्योंकि इस बार भी जो विड्रॉ किया गया उसके आर्टिकल 30 में ये चीज़ था, ठीक है। तो राइट टू फॉरगेटन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। Coming to the next aspect of today analysis is about the Delhi police use of facial recognition technology। देखिए ये जो पूरा एक्ट है आपका दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे आर्टिकल में क्या यूज़ किया गया मैं इसको बता दूं कि फेशियल रिकॉग्निशन का टेक्निक यूज़ किया जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन, आपको लग रहा हो कि फेशियल रिकॉग्निशन क्या होता है। बेसिकली इस पर क्या होता है कि जो कल्प्रिट होते हैं, राइट, या जो सस्पेक्ट होते हैं, उनका एक इमेज तैयार किया जाता है, स्केच रेडी किया जाता है, फिर उनको वो लोग अपने दिल्ली पुलिस अपने डेटा में डाल देती है।
जैसे ही डेटा में डालेगी तो इट विल सर्च इट आउट कि किस किस लोगों से कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनसे ये मैच कर रहा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड से कैसे मैच करेगा? क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है जस्ट कुछ दिन पहले, राइट? तो उससे मैच कराया जाएगा। तो एनसीआर भी इसको रखता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उससे मैच कराया जाएगा। उस डेटा में अगर 80% से ऊपर अगर मैच आ गया तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और 80% से नीचे है तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस पर्सन पे, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्राइमा फेसाई रॉन्ग, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई पर्सन है, अगर उसकी फैमिली में क्रिमिनल हिस्ट्री है बट दैट पर्सन डोंट होल्ड दैट मच क्रिमिनल हिस्ट्री, और क्रिमिनल हिस्ट्री है ही नहीं उसका, तब भी उसके इस चीज में इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बेसिकली आरटीआई था, और ये जो फेशियल वाला था ना, ये यूज किया गया था दिल्ली पुलिस के थ्रू एक केस में भी, उस केस का भी नाम मेंशन है। और तभी इस आर्टिकल को जब भी आप पढ़ेंगे तो वो डेटा प्रोटेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, राइट? कमिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस न्यूज इज, फर्स्ट थिंग इज द स्टोरीज ओवर दैट आई हैव टोल्ड यू। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, राइट? ये पूरा स्टोरी मैंने आपको जस्ट बताया अभी, 80% वाला। अब ये केस का जो नाम है वो ये केस है आपका साधन हलदार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें ही मिसिंग चिल्ड्रन को खोजने के लिए ये चीज़ किया गया था। वह दिल्ली पुलिस इसको हर चीज़ में यूज़ कर रही है, रिगार्डिंग इट इज़ अ एंटी सीए प्रोटेस्ट और शाहीन बाग प्रोटेस्ट, एनीथिंग दिल्ली पुलिस इज यूजिंग इट। सो दिस इज काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग कि देयर कैन बी अ बायसनेस, और अच्छे लेवल का बायसनेस होता है। अब जो एफआरटी है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, वन ऑन वन वेरिफिकेशन। वन ऑन वन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि एक मैप तैयार किया जाता है, राइट? एक मैप तैयार किया जाता है, मतलब उस पर्सन का इमेज रेडी किया जाता है, पर्सन फोटोग्राफ, और उसको मैच कराया जाता है कि ये है नहीं है, ये है नहीं है। अनलॉकिंग द मोबाइल फोन यूज बाय यूजर्स, राइट? तो ये चीज़ है कि जब भी कोई फोन अनलॉक करवाना हुआ या फिर ऐसा कोई है लग रहा है कि हाँ दिस इज द पर्सन, तो वन ऑन वन मैच होता है इसमें। इट इज नॉट लाइक वन ऑन एन मैच। दूसरा मैच है वन ऑन एन मैच। वन ऑन वन मैच बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन को एक से ही रिकॉग्नाइज कराया जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस होल टॉपिक, just pin me on the comment section, I'll surely answer it, right? Coming to the next aspect of this, second aspect क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का आप बात करें तो वो होता है वन ऑन एन आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई चाइल्ड होता है, मिसिंग चाइल्ड इन रिलीजियस फेस्टिवल, बहुत अच्छा एग्जांपल भी इसमें कोट किया गया कि जस्ट लाइक कोई एक चिल्ड्रन है, वो जस्ट सपोज कि वो खो गया मेले में, राइट? वो मेले में खो गया, तो कैसे फाउंड करेंगे? तो उसका फेस बनवाएंगे या उसका फेस लेंगे, उसको डेटा में डाल देंगे, राइट? अब वो एन नंबर ऑफ लोगों के अगेंस्ट उसको खोजे, तो एक पर्सन को खोजा जा रहा है एन नंबर के अगेंस्ट, तो हम कहेंगे वन ऑन एन आइडेंटिफिकेशन। और वन ऑन वन क्या होता है? जब एक पर्सन के अगेंस्ट खोजा जाए। केस का नाम याद रखना है, एनसीटी ऑफ दिल्ली का ही केस है, और इसको कनेक्ट कर लेना है नेशनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से और यूरोपियन यूनियन आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, और अभी रिसेंटली आया है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन एक्ट, जो 2022 का एक्ट है, वो आया है। तो उससे इसको हमें लिंक करके पढ़ना है, एंड दस हमारा काम हो गया डेटा प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग। जो भी क्वेश्चन आएगा नाउ यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज अबाउट द लंपी स्किन डिजीज। इफ यू गो इनटू द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन, तो सबसे टॉप पे एक छोटी सी क्लिप मिलेगी आपको, लंपी स्किन डिजीज। लुक, स्किन डिजीज आर nowadays very important aspect because these hold a lot of importance, because कोरोना वायरस है, लंपी स्किन डिजीज अभी नया है, मंकी पॉक्स है जिसको हमने डील किया। मंकी पॉक्स इज अ जूनोटिक डिजीज, कि जो जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जो एनिमल से ह्यूमन में या फिर वाइसा वर्सा ट्रांसफर होते हैं। तो बात करें कि अभी लंपी स्किन डिजीज क्या है, ये बेसिकली कैटल्स में मिल रहा है। कैटल्स में जो वाटर बफेलोज हैं और कैटल के ब्रीड्स में, ऑल ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड वाटर बफेलोज में इसको पाया जा रहा है, राइट? एंड दिस वायरस, ये जो वायरस है वो आपको है कैप्रीपॉक्स वायरस, ये याद रखना है, कैप्रीपॉक्स वायरस। और जेनेटिकली किससे रिलेटेड है? गोट पॉक्स और शीप पॉक्स। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि किससे जेनेटिकली रिलेटेड है, गोट पॉक्स और शीप पॉक्स। ये जो वायरस है वो किस फैमिली का है? कैप्रीपॉक्स वायरस, राइट? और किस में होता है ये? कैटल्स में, वाटर बफेलो में। इसकी अगर ओरिजिन की बात की जाए, जैसे हम हर एक डिजीज के ओरिजिन से, मंकी पॉक्स का कोई ओरिजिन नहीं मिला था, बट इसका जो है LSD जिसको बोला जाता है, लंपी स्किन डिजीज, तो ये अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है। फर्स्ट केस इसका अफ्रीका में कंफर्म किया गया था 1929 में। ये डेट्स कुछ याद होनी चाहिए, लंपी स्किन पे आएगा तो ऐसी डेट्स आएंगे। 1929 में कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। किस फैमिली से है? कैप्रीपॉक्स वायरस। किस में होता है? कैटल्स में होता है। क्या ये जूनोटिक है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सर इट इज नॉट अ जूनोटिक, इट इज
नॉट जूनोटिक, मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं है। और एशिया पैसिफिक में कब मिला? 2019 में। हर डिजीज की जगह, जैसे ये भी चाइना में मिला पहली बार, बांग्लादेश और इंडिया में मिला, राइट। जूनोटिक डिजीज याद रखना है कि ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। इफ दिस क्वेश्चन कम इट विल बी अ बूस्टर फॉर यू कि सर ये जूनोटिक नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेंड टू आंसर कि सर ये तो जूनोटिक होगा, जैसे सारे डिजीज होते हैं, राइट। तो ये जूनोटिक नहीं है, इट इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, तो ये याद रखनी है। Coming to the next aspect, what not to be missed part. It is important for us today because I am going to highlight some old aspects today. Making bail impossible. This is related to PMLA, Prevention of Money Laundering Act, Unlawful Activities Prevention Act. Just search out my video before 10th August. I have covered this PMLA 3 to 4 times. Just search it. Even today I have asked question that which judgment of PMLA has just overruled द निकेश ताराचंद जजमेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, फिर गड़बड़ होने लगता है कि सर कैसे होगा कैसे होगा, ये तो टफ क्वेश्चन पूछ दिया, लीगल से क्वेश्चन पूछा। नहीं, लीगल से नहीं पूछा था, वो क्वेश्चन करंट में था, बस आपने मिस कर दिया न्यूज़। यार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो टफ टॉपिक है, ये क्यों आएगा? ये बेसिक टॉपिक है, ये एक टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेली आपके न्यूज़ में चल रहा है। द कंट्रोवर्सी अराउंड द नेपाल सिटीजनशिप लॉ, एक बार पढ़ लीजिएगा, आने वाले टाइम पे इस पर बहुत अच्छे से आर्टिकल्स आएंगे तो हम इसको कवर करेंगे। अभी के लिए इसकी उतनी नीड नहीं लग रही है, बिकॉज थोड़ा सा और डिटेलिंग में जब ये चैप्टर जाएगा तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डील, जस्ट लाइक द PMLA वर्डिक्ट। PMLA को जरूर पढ़िएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कि विच जजमेंट ओवर रूल द निकेश ताराचंद केस, राइट। जैसे केएस पोट्टास्वामी को 2 केस ने ओवर रूल किया था, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एक और ने, तो उसी तरह से इसको याद रखना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, चेक योर लर्निंग पार्ट। ये क्वेश्चन करके बताइएगा, आंसर बताइएगा जरूर। ये 2018 में किसी बहुत फेमस एग्जाम में पूछा गया था, जिसके लिए मतलब बहुत कंपटीशन होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि उसी एग्जाम से क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 है, राइट टू प्राइवेसी से रिगार्डिंग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैट से, राइट, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल विड्रॉ हुआ है तो राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली पुलिस वाला आर्टिकल आ गया, तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट द GI। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इट विल हेल्प यू लॉट, और इसको आपको कनेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट मदद मिलेगी। और GI को आपको थोड़ा सा और एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं, उसमें करिएगा आप। GI इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बताइएगा GI किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? टोटल GI इन इंडिया, टोटल GI कितने हैं? टोटल GI। थर्ड बताइएगा, विच स्टेट हैव मैक्सिमम GI? मैक्सिमम GI किस स्टेट का सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? टोटल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कितने हैं? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, राइट। जब आप लॉ पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। और अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन भी करना है, तो आपको ये आंसर क्या करना है? आपको GI किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? व्हेन दिस GI लॉ इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन, कब आया, राइट, एंड विच स्टेट have maximum and minimum GI? ये आंसर करिएगा, which state have maximum and minimum GI, राइट। और ये क्वेश्चन को आंसर करिएगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आई विल रेट इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बताइएगा। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी आया है, इसलिए मिथिला मखाना जो बिहार का, इसमें बताया क्या है, बताइएगा आंसर क्या है इसका। मैं आपको बता दूं एक चीज़ की, मखाना इज कॉल्ड फॉक्स नट्स, तो इन केस अगर एग्जाम में फॉक्स नट लिख के आता है तो कंफ्यूज नहीं करना, राइट। तो मिथिला मखाना या मिथिला फॉक्स नट जो लिख के आता है, मैं यही टिक मारता। बताइएगा अभी के लिए क्या आंसर होगा इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट द वेटलैंड। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, रामासर वेटलैंड साइट्स, बिकॉज 75 वेटलैंड्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑन द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी रिसेंटली एक बैंक है, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग रिलीज किया है, राइट। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम लोगों ने 20 अगस्त का जो वीडियो था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उससे पहले भी डिस्कस किया इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन को वही कंट्रोल करता है। एंड आई अप्रिशिएट जो जिन लोगों ने कल 20 अगस्त का जो क्वेश्चन जिन्होंने आंसर किया, दे आर वेरी नाइस, लाइक यू आंसर्ड करेक्टली एंड इट इज़ वेरी नाइस दैट दे आर आंसरिंग। और वो टफ क्वेश्चंस होते हैं माय फ्रेंड, तो डिफिकल्ट हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, ये आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल बताइएगा किस
इंस्टीट्यूशन ने इस चीज़ को लाया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए थे उसके ऊपर 2 कमेटी बैठी थी, 2 कमेटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितनी कमेटी बैठी थी प्राइवेटाइजेशन पे। 2 कमेटी बैठी थी, एक थी पीजे नायक की कमेटी, पीजे नायक, और एक थी नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, राइट। पीजे नायक और नरसिम्हा, नरसिम्हा कमेटी जो थी उन्होंने कहा था कि 33% बैंक्स प्राइवेटाइज हो, और पीजे नायक ने कहा था 50% बैंक्स प्राइवेटाइज हो। और अभी एक बैंक ने कहा है, बताइएगा, नीति आयोग ने कहा कि स्टेट बैंक ने कि आरबीआई ने? मैं आपको हिंट देता हूँ, बैंक ने कहा है, ठीक है? तो बताइएगा किस बैंक ने कहा है? सेंट्रल बैंक है वो। चलिए आंसर ही मिल गया अब तो आपको, सेंट्रल बैंक है। बताइएगा आंसर क्या है, and do mention in the comment section if you have any doubt, any concern regarding this session, and just answer your questions, answer your doubts. Do make notes, topic wise notes banane, it will help you a lot in the examination. And thank you, that's all from my side.